Assalamualaikum everyone, welcome back to this channel. This is me Ari Wahid. In this video we are going to start the question number 3 and 4 of arithmetic mean. So in the previous lecture we have discussed what are the formulas of it. Now we are going to solve the question of exercise as well as the examples question. So here we are going to solve question number 3 and 4 from it. So we have to find the arithmetic mean. So this is the question number 1. Now we have discussed the formula of arithmetic mean, the summation x over n. So I have add all of these values and divide them by the total number, like these values are 1 2 3 4 5 6 7 8. Divide by 8. After solving it in the calculator I have got this answer. So this is the arithmetic mean. If this is the direct method to solve it, now by indirect method you will apply this formula, a plus summation d over n. Now they have gave a 24 in the question, so you will put them. Summation d will be found out by this table which I have made. So I have made this table. This is the values of x and I have find the value of d. D is found by mining this x with the a24, and after that I have got these values. I have add them and I will get the answer 4. I put all the values and got the answer. Now move on to the next answer. You have given to solve the direct method in the question number 3, and in the question number 4 you have given to solve it with the indirect method. So I am solving them both together. Okay, so second question is this: you have given this value, I have again put them, divide with the total number, like 1 2 3 4 5 6, and this is the 7. So I have divide them, divide after dividing I have got this answer. This is the direct method given in the question number 3. Now move on to the indirect method of this question. So here this is the indirect method in which I have put this formula, x this value, find out the d value, I have put them, and after that I have solved the question. Now move on to the question number 5 of your exercise, and by this exercise you have to find out the arithmetic mean by the direct method. So I have put the formula because now you are given the group data in which frequency is given, so therefore I have applied this formula, not apply this formula of summation x over n. Okay, so frequency is given, I have find the mean. How to find the mean? 0 plus 9 divided by 2. इस तरह 0 plus 10 plus 19 divided by 2. So इस तरह करते जाएंगे, x की वैल्यू आ जाएगी. fx निकालना है, इन दो को मल्टीप्लाई करके fx आएगा, उसका टोटल ले लें, इसका टोटल ले लें, डिवाइड करें और a की वैल्यू आ गई. अब उन्होंने कहा इसको इनडायरेक्ट मेथड से सॉल्व करें. अच्छा, ये याद रखिएगा कि यही जो चीज़ है ये आपको एग्जांपल नंबर 4 में दी हुई है. सो साथ साथ हमारी एग्जांपल्स भी होती जाएंगी. ठीक है, सो इसको इस वीडियो में हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी कर रहे हैं और एग्जांपल्स भी कर रहे हैं. सो ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया और एग्जांपल नंबर 4 भी हो गई है, जो कि आपके बुक में है. अच्छा बच्चों, अब नेक्स्ट वाले मेथड में चलते हैं जिसमें अरिथमेटिक मीन निकालना है हमने इनडायरेक्ट मेथड से. सो उसका फार्मूला मैंने अप्लाई किया है, उसकी वैल्यूज़ निकाली है, डी निकाला है, एफ डी, क्योंकि अब ये फार्मूला था इनडायरेक्ट मेथड का. ए जो है वो हमने पीछे यहाँ पर निकाला था 32.5, वही ए मैंने यहाँ पुट किया है और आंसर्स निकलने के बाद मैंने पुट कर दिया. ठीक है, सो अब बिल्कुल इसी तरह ही आपने क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करना है, वो बिल्कुल सेम है. तो मैं दोबारा वो सॉल्व नहीं कर रही हूँ. आपने बिल्कुल जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 5 किया है, बिल्कुल यही सेम पैटर्न क्वेश्चन नंबर 6 पे अप्लाई करना है. अच्छा, अब ये हम एग्जांपल स्टार्ट करने लगे हैं. एग्जांपल नंबर 1 है, ये वैल्यू आपको ये दी गई थी, अरिथमेटिक मीन निकालना था. मैंने सबको ऐड किया है, 7 टोटल नंबर्स थे तो उनसे डिवाइड कर दिया, आंसर आ गया. क्वेश्चन नंबर 2 में सिमिलरली बिल्कुल ऐसे ही करना है. ये टोटल वैल्यूज़ थी, उनको ऐड किया मैंने और 5 से डिवाइड किया क्योंकि टोटल वैल्यूज़ का नंबर 5 था और x आ गया. अब इसको ए मैंने इसमें से निकालना है तो मैं इसको रिड्यूस कर दिया है ताकि मेरा आंसर सही निकले. अब इनडायरेक्ट मेथड से इसको सॉल्व करना था, तो देखते हैं आगे इनडायरेक्ट मेथड से क्या क्या आंसर आया है. तो ये आंसर आया मेरे पास इनडायरेक्ट मेथड को सॉल्व करने से. ऐसे याद रखिएगा, ये वाला जो क्वेश्चन हमने किया था ये एग्जाम्पल नंबर 5 थी, तो साथ साथ हमारी एग्जाम्पल नंबर 4 और 5 हो चुकी है. 1 2 हम कर रहे हैं और उसके बाद सिर्फ 3 एग्जाम्पल हमने करनी है और अरिथमेटिक मीन के सारे एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज के क्वेश्चन हमारे हो जाएंगे. ठीक है. अच्छा, ये एक्स की सारी वैल्यूज़ मैंने नहीं लिखी हैं, डी आप निकाल लेंगे खुद एक्स माइनस ए करके, और यू निकालना है आपने एक्स माइनस ए डिवाइड बाई 100, यानी डी की वैल्यू को 100 से डिवाइड कर लो, यू की वैल्यू आ जाएगी. अब दोनों फार्मूले में पुट करो, एक्स इज इक्वल टू ए की वैल्यू पुट की, समेशन डी की वैल्यू ये वाली थी ये पुट की, 5 से डिवाइड किया, ये आंसर आया. इसी तरह ए की वैल्यू पुट की, ये यू की वैल्यू थी 32,
5 से डिवाइड किया, आंसर सेम आया। सो दोनों का आंसर सेम आएगा, ये याद रखना हमेशा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। अब आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई है, ग्रुप डाटा है, एक्स दिया हुआ है, एफ दिया हुआ है। सो अरिथमेटिक मीन निकालना था, समेशन एफ एक्स और समेशन एफ। समेशन एफ एक्स निकाला मैंने इन दो को आपस में मल्टीप्लाई करके, उनका टोटल लिया, डिवाइड किया और तकरीबन आंसर आया 2.45 और उसको अप्रॉक्सीमेटली 3 एज्यूम कर लेंगे हम। ठीक है। सो आज के इस लेक्चर में हम लोग अरिथमेटिक मीन, उसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन और उसकी एग्जांपल्स सारी हम लोग देख चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जाएंगे जी ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन के ऊपर और उनकी एग्जांपल्स और उनके एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और फिर उसके बाद हमने मीन और मोड की तरफ जाना है। ठीक है। सो आज का लेक्चर यहीं पर मैं ख़त्म करूँगी, मिलूँगी अगले लेक्चर में ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन के साथ। अगर आप चाहते हैं कि आप लोग भी इस वीडियोस को देखते रहिए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, मीट यू सून इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।